Hi everybody. So the topic of today's video will be Vaad, Samvad and Vivad. Why is it so necessary to communicate with people, and how do we find what kind of a conversation is going in a right direction and what is not? So I'm gonna start this by giving you one example that I found in one of the lectures of Swami Sarvapriyananda. In one of his lectures, he was telling that one of the monks sent him a photograph of two orange juices जिन पे straight sunlight पड़ रही थी. तो it was a really good photograph. Once when Swami Sarvapriyananda realized that one of the glasses was of orange juice and the other one was just water, so it gave him a really actually already had a good insight, but what he meant to tell was that when the light fell on the glass of juice and the glass of water जो उसके बिल्कुल पीछे रखा हुआ था, so because of the color of the juice, the orange color, the water appeared to be orange. So it seemed that both the glasses were of the orange juices. So this means what he wanted to tell was that the white light जो उस ग्लास पे पड़ी, it was basically the water was colorless and the light was also totally a visible light, but जैसे ही orange color पे पड़ी, so now the color of the light becomes orange जो हमको reflect होके दिखता है पानी के अंदर. So he wanted to tell that we people have a lot of filters जो हमारे वॉचफुल व्यूअर के ऊपर पड़ते हैं, और अब हम एज अ वॉचफुल व्यूअर वी सी लाइफ इन दोज फिल्टर्स. एंड नाउ व्हाई डिड आई गिव यू दिस एग्जाम्पल? As I told you that the topic of today's video will be Vaad, Samvad and Vivad. So whenever we are conversing with somebody, so there are three kind of things happening. Once, like if I'm talking to you, so three kinds of things are happening. First thing, I'm gonna talk to you, you're gonna listen to me, and now you're gonna judge me, or you're gonna interpret me on the basis of your thinking. जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है उसको लेके आप मेरे ही बात का एक इंटरप्रिटेशन बनाएंगे, और फिर आपको ये समझ में आएगा कि नहीं नहीं ये तो ऐसा बोलना चाहती थी, ऐसा है वैसा है. इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. सो वाइल आई वॉज अपलोडिंग माई वीडियोज़, not many but yeah, few of my friends they texted me and they're like, Bhanushi, look, you are uploading really nice videos, but I will just recommend you that you can do this kind of a change, like you can do this soundproofing and all. Somebody will tell me that you can be a bit confident when you speak. So all these people telling me things. That means that doesn't imply, if I talk about myself, that how I should do, but it is basically how they want me to do, because they are watching me with their filters. जैसे इसका सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, somebody on internet, somebody really good celebrity talks something and ग्रुप ऑफ पीपल वो उससे बहुत ज़्यादा हिल जाता है एंड एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, एंड देन दे क्रिएट बैन सो एंड सो सेलिब्रिटी. नाउ द सेलिब्रिटी सेज, ओ आई एम सो सॉरी, आई डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन टू से लाइक दैट. Now somebody will support, some people will support her and some people won't. How is this controversy happen? Controversy, yeah. How is this controversy is happening? That simply means कि some people are watching
हर और हिम विद द फिल्टर जो उनके हिसाब से सही नहीं है. सम पीपल आर वॉचिंग हर और हिम विद द फिल्टर जो उनके हिसाब से सही है. तो इससे बात सही या गलत नहीं होती है, बात सिर्फ आपके फ़िल्टर्स के ऊपर आके रह जाती है कि नहीं, हमको लगा कि ये गलत है, हमको लगा ये सही है, क्योंकि अब हम उनको हमारे हिसाब से देख रहे हैं. जैसे किसी ने मुझे देख के बोला, लुक योर आईज़ आर लुकिंग सो स्लीपी वाइल यू आर मेकिंग अ वीडियो. Why don't you do something about it? It does not look really appealing to us or to the people. तो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ेंगे? But somebody else told me, oh my god, you were making so good videos, I can totally relate. तो the change of opinions क्यों आ रहे हैं हमारे अंदर? जब बात एक ही है तो अलग अलग ओपिनियंस क्यों आ रहे हैं? अलग अलग ओपिनियंस, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला कुछ गलत या सही बोल रहा है. इसका सिंपली मतलब ये है कि हम किस तरीके से सामने वाले को देख रहे हैं अपने फ़िल्टर्स के थ्रू. तो जब हमारे फ़िल्टर्स बहुत ज़्यादा बड़े हुए होते हैं, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा जब हमारे फ़िल्टर्स होते हैं, तब हम सामने वाले को सुनते नहीं हैं. तब हम बस सामने वाले से सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो हमको लगता है ठीक है. तो इवन इफ़ द पर्सन इज़ टॉकिंग द अदर पर्सन इज़ टॉकिंग टोटली डिफरेंट थिंग, but still the person will only think that they are saying this thing, because वो उनके फ़िल्टर्स के हिसाब से उनको वही सुनाई देगी. फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो टॉपिक कुछ अलग हो, क्योंकि वो तो वही सुनना चाहते हैं ना. उनका फ़िल्टर इतना बढ़ गया है. तो इट्स लाइक हिटिंग अ वॉल दैट टाइम. तो अब ये जो कॉन्वर्सेशन और वाद हो रहा है, ये विवाद बन जाता है. और ज़रूरी नहीं है विवाद आर्ग्यूमेंट ही हो और सिर्फ रिप्लाइज़ हों, आज डिबेट चल रही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. विवाद हमारे दिमाग में भी बन सकता है. और जब इतने बड़े फ़िल्टर्स होते हैं ना, तब हमको सामने वाला कभी सही लगता ही नहीं है. हमें सिर्फ हमेशा यही लगता है कि वो गलत है, क्योंकि हमारे फ़िल्टर्स ही इतने बड़े हुए हैं. अब आता है विवाद, तो हो गया. अब बात आती है वाद की. वाद क्या होता है? नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम टॉकिंग एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मी एंड आप मेरे साथ में सहमत हैं. तो इसका मतलब ये है कि आप अपने फ़िल्टर से जब मुझे देख रहे हैं तो आपको कुछ बातें सही लग रही हैं और आप उन बातों से रिलेट करके बोल रहे हैं कि हाँ यार, बात तो सही कर रही है. तो यहाँ पे हमारा वाद हो रहा है, विवाद नहीं हो रहा है, क्योंकि अब हमारे फ़िल्टर्स तो हैं, लेकिन फ़िल्टर्स इतने भी नहीं हैं कि आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो. अब आपको ये तो पता लग रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. संवाद. अब जब मेरे और आपके फ़िल्टर्स बराबर हैं, तो अब हम दोनों एक पेज पे हैं. अब मैं आपको जो भी बोलूँगी आप हर बात मेरी समझेंगे, क्योंकि अब हम दोनों के फ़िल्टर्स सेम हैं. आपको अब हर बात समझ आएगी मेरी. अब ये हमारा संवाद हो रहा है, यहाँ पे अग्रीमेंट हो रहा है. ये तो हो गए वाद, संवाद और विवाद. उसके बाद में एक फोर्थ स्टेट आती है जिसमें मैं आपसे बात कर रही हूँ, या चलो मैं मेरी बात तो नहीं करूँगी, बट फॉर एग्ज़ाम्पल अ सदगुरु इज़ टॉकिंग, or any spiritual guru is talking, and now when he is talking you are totally lost in them, and आप इतने ज़्यादा खो चुके हैं कि अब आप समझ से ऊपर पहुंच गए हैं, समझ से परे हो चुके हैं, क्योंकि अब आपको समझना ही नहीं है, आप बस उनके वर्ड्स के अंदर खो गए हैं. स्पिरिचुअल गुरु बात कर रहे हैं, चलो एक और एग्जांपल, जैसे हम कुछ गाना सुन रहे हैं, कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, एंड वी आर सो इन लव विद दैट म्यूज़िक दैट वी हैव टोटली लॉस्ट द सेंस ऑफ सेल्फ. तो अब हम खुद नहीं रहे हैं, अब हम वो गाना बन चुके हैं. तो अब कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है. गुरु बात कर रहे हैं, तो अब कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है. कॉन्वर्सेशन हमेशा दो जनों के बीच में होती है. तो ना संवाद हो रहा है, ना ही वाद हो रहा है. अब हम खो चुके हैं. खोने का मतलब ये सारे फ़िल्टर्स हम गिरा चुके हैं, और अब कॉन्वर्सेशन जैसा कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि अब हम एक हो चुके हैं उस बात के अंदर. अब हम गुरु की ही बात बन चुके हैं, क्योंकि अब हमारे साथ में अब कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है. अब हम उस गाने में खो चुके हैं. तो अब हम खुद गाना ही बन गए हैं. जैसे बोलते हैं कि आर्टिस्ट जब ड्रॉ करता है तो वो आर्ट हो जाता है. कबीर को जब गाता है या कबीर को जब कोई बोलता है तो वो कबीर हो जाता है. मीरा की जैसी कोई भक्ति करता है तो वो मीरा हो जाती है. इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब वो वननेस आ गई है. अब
कॉन्वर्सेशन का मतलब ही नहीं बचा। तो जब आप खो चुके हैं तो अब कॉन्वर्सेशन नहीं है, क्योंकि 2 जने अब हैं ही नहीं। अब बस आपके सारे फ़िल्टर्स गिर चुके हैं और अब आप एक हो चुके हैं, और यही एक होना स्टेट होती है टोटल ब्लिसफुलनेस की, बिकॉज नाउ यू हैव नो सेंस ऑफ सेल्फ। एंड नाउ व्हेन द कॉन्वर्सेशन इज़ नॉट हैपनिंग, दैट मीन्स देयर इज़ साइलेंस. So now the silence is in talking. Now you can experience the silence in music also. Now you can experience the silence in talking also. Now you can experience the silence in everything that you do. तो silence का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि शांत बैठ जाना और बस meditative state में, meditation के posture में बैठ के बस silence में बैठ जाना, क्योंकि उस वक्त हो सकता है हम बैठ के हमारे दिमाग में 10 बातें चल रही हों, तो वो साइलेंस नहीं है, वो वाद विवाद संवाद ही चल रहा है अभी भी। लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उसकी बात में खो चुके हैं, या अब आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई गाना सुन रहे हैं और आप उसके गाने में खो चुके हैं, तो अब आप वो साइलेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आई थिंक आई एम गोना दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू. तो फ़िल्टर्स और फ़िल्टर्स अब गिरेंगे कैसे? हाउ डू वी नो कि हमारे कितने फ़िल्टर्स हैं? तो इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है. Just simple awareness is necessary to to get all your filters down. Not all, but कुछ filters तो ऐसे होते हैं कि आप aware हुए और फटाक से निकल जाते हैं. अब जैसे ही filters गिरने लगते हैं, तब आपको पता लगता है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है और सामने वाला का intention क्या है.